یہ کہانی ہے اس خوفناک چیخ کی جو ابلیس نے اپنے انجام کے وقت نکالی۔ ایک ایسا انجام جو درد، ذلت اور بے بسی سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس کا سامنا ملک الموت سے ہوا تو وہ زمین پر بھاگتا رہا، آسمانوں کی طرف لپکا، اندھیروں میں چھپنے کی کوشش کی، مگر تقدیر نے اسے کھینچ کر اس مقام تک پہنچا دیا جہاں جانے سے وہ ہمیشہ بھاگتا رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس، وہی آدم جنہیں سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تھا، اور وہیں اس کا قصہ ختم ہو گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچا کیسے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹچ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں آیا؟ وہ نبی جنہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور اس نے ان سے توبہ کی درخواست کیوں کی؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی شیطان ان کی قبر کو کیوں تلاش کرتا رہا؟ اگر آپ کو اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کس ملک سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، انسان کی تخلیق سے بہت پہلے زمین آج جیسی پرسکون نہ تھی۔ یہاں پہاڑ تھے، سمندر تھے، مگر نہ کوئی ترتیب تھی، نہ خاموشی، اور سب سے بڑھ کر وہ امانت جسے انسان کو دیا جانا تھا، اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ زمین خالی نہیں تھی، بلکہ خون، آگ اور بغاوت سے بھری ہوئی تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین کو تیار کرنا شروع کیا، اس سے پہلے بھی یہاں کچھ مخلوقات آباد تھیں، اور ان میں سب سے قدیم مخلوق کو جاہن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایسی مخلوق تھے جو بے دھواں آگ سے پیدا کی گئی تھی۔ انہیں آج ہم جنات کی ابتدائی نسل کے طور پر جانتے ہیں۔ جسمانی طور پر وہ انسانوں سے مختلف تھے، مگر عقل، ارادہ اور اختیار کے معاملے میں وہ انسانوں سے بہت ملتے جلتے تھے۔ ان پر بھی احکام نازل کیے گئے، انہیں بھی آزمایا گیا، اور ان کے اعمال کا انہیں جواب دہ بنایا گیا۔ جان کی اولاد پوری دنیا میں پھیل گئی۔ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر آباد ہوئے، سمندروں کی گہرائیوں میں اتر گئے، اور تاریک غاروں میں بسیرا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کے لیے بھی ایک قانون نازل فرمایا۔ انہیں توحید کی عبادت اور صراط مستقیم کی طرف بلایا گیا۔ ان میں ایک جن جس کا نام تانوس تھا، اور اس کی نسل نے اس دعوت کو قبول کیا۔ وہ ایمان لائے اور عبادت گزار بن گئے، مگر اکثریت نے اس پکار کو ٹھکرا دیا۔ روایات کے مطابق، بالخصوص ابن عربی کی نقل کے مطابق، تقریباً 4020 سال تک جنات دنیا کے مختلف حصوں میں عبادت کرتے رہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تکبر آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں داخل ہونے لگا۔ پھر فساد پھیلنا شروع ہوا، خون بہایا گیا، طاقتوروں نے کمزوروں کو کچل دیا، آگ سے پیدا ہونے کی سختی نے رحمت کو مغلوب کر دیا، تکبر بڑھتا گیا، اطاعت کم ہوتی گئی، اور زمین وہ جگہ نہ رہی جہاں اللہ کا نام لیا جاتا تھا، بلکہ وہ بغاوت کا میدان بن گئی۔ روایات کے مطابق جان کی یہ قوم نہ صرف آپس میں لڑتی رہی، بلکہ زمین کے نظام کے خلاف بھی بغاوت پر اتر آئی۔ پہاڑ اپنی جگہوں سے ہٹا دیے گئے، توازن بگڑ گیا، اور تخلیق کا حسن متاثر ہونے لگا۔ عین اسی لمحے الہی مداخلت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کا ایک لشکر زمین کی طرف بھیجا، مگر یہ کوئی عام مہمت نہ تھی، یہ ایک صفائی تھی، یہ ایک حساب تھا، اور اس مہمت کی قیادت ایک ایسی ہستی کے پاس تھی جس کا نام اس وقت ہر ایک کی زبان پر نہ تھا، مگر آسمانوں میں اسے بڑا مقام حاصل تھا۔ عزازیل، وہی جو بعد میں ابلیس اور شیطان کے نام سے جانا گیا۔ اس وقت ابلیس کا ذکر فرشتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، کیونکہ اس نے طویل عرصہ تک اطاعت کی تھی، اس نے سجدے کیے تھے، اور اپنے علم کی وجہ سے نمایاں تھا۔ روایات کے مطابق زمین اور آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں اس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ اسی وجہ سے اسے فرشتوں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کا مشن واضح تھا، جان کی قوم کے فساد کا خاتمہ کرنا، اور ابلیس اس مشن میں کامیاب رہا۔ اس نے فرشتوں کے ساتھ مل کر جان کی قوم کے خلاف جنگ کی، انہیں شکست دی۔ کچھ کو زمین کے پوشیدہ گوشوں میں دھکیل دیا گیا، کچھ کو سمندروں کی گہرائیوں میں بھیج دیا گیا،
और कुछ को दूर दराज इलाकों में बखेर दिया गया। जमीन कम से कम कुछ अरसे के लिए पुरसुकून हो गई। खून बहना रुक गया, फसाद दब गया और निजाम बहाल हो गया। मगर असल खतरा यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि इस फतह ने इब्लीस के दिल में एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो खामोश थी, जिसे किसी ने ना देखा मगर अल्लाह ताला खूब जानता था। तकब्बुर। अब इब्लीस खुद को सिर्फ एक मुती बंदा नहीं समझता था, उसके अंदर ख्यालात जन्म ले चुके थे। अगरचे वो अभी जबान पर ना आए थे मगर बढ़ रहे थे। मैंने कामयाबी हासिल की, मैंने जमीन को पाक किया, मैं बरतर हूं। इताअत अभी बाकी थी मगर इखलास में दरार पड़ना शुरू हो चुकी थी। यही वजह है कि इंसान की तख्लीक कोई इत्तफाकी वाक़या ना था, बल्कि ये एक बिगड़े हुए तवाज़ुन का जवाब था। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन में एक नए खलीफा को पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों का सवाल निहायत मानी खेज था। क्या तू उसको पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा? ये सवाल जान की कौम की याद से पैदा हुआ था। ज़मीन ये मंजर पहले देख चुकी थी और उसकी कीमत भी चुका चुकी थी। अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून। इस जवाब में इंसान के बारे में एक राज भी था और इब्लीस के बारे में एक पोशीदा हिसाब भी, क्योंकि इंसान की तख्लीक से पहले ही आजमाइश शुरू हो चुकी थी। इब्लीस के दिल का तकब्बुर अभी जाहिर ना हुआ था, मगर वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जहां से वापसी ना थी। जान की कौम तो खत्म कर दी गई, मगर उनकी छोड़ी हुई वरासत यानी बगावत, तकब्बुर और बर्तरी का दावा एक और दिल में जिंदा रही, और बहुत जल्द ये तकब्बुर पहली बार खुलकर सामने आने वाला था। जमीन को संवारा जाएगा, रूह फूंकी जाएगी और सजदे का हुक्म दिया जाएगा। मगर उस लम्हे से पहले ये समझना जरूरी है कि इब्लीस कौन था और वो यहां तक कैसे पहुंचा, क्योंकि ये किस्सा सिर्फ शैतान का नहीं बल्कि इंसानियत का भी है। इब्लीस की कहानी कोई अचानक शुरू होने वाली बगावत की कहानी नहीं, जैसा कि अक्सर लोग समझते हैं। इब्तिदा में वो न रद्द किया गया था, न मलूम था, न तारीफ, बल्कि तवील अरसे तक वो इताअत का निशान और इबादत की मिसाल समझा जाता था। आसमानों में उसका नाम एहतराम से लिया जाता था। इस्लामी रिवायात के मुताबिक इब्लीस जिन्नात में से था, मगर आम जिन ना था। वो अपने इल्म, इबादत और मुनज़्ज़म बंदगी की वजह से नुमाया था। जब उसने ज़मीन पर जान की कौम के खिलाफ जिदाहिद में कामयाबी हासिल की तो उसका जिक्र फरिश्तों के साथ होने लगा। वो उन्हीं सफ़ों में खड़ा होता और उसी तरह के अहकाम से मुखातब होता। इसने उसके मकाम को मुनफरिद बना दिया। हैरानकुन रिवायात के मुताबिक इब्लीस ने हज़ारों साल इबादत की, और ये कोई मामूली इबादत न थी। तवील ज़माने सजदों में गुजरे, ऐसे औकात जब जिक्र कभी न रुका, और ज़मीन और आसमान में अल्लाह के नाम के फैलाव के बारे में कहा जाता है कि कोई ऐसी जगह ना थी जहां इब्लीस ने सजदा ना किया हो। वो सातों आसमानों में गया और हर दर्जे में अलग अलग इबादत की, मगर इस इबादत के अंदर एक पोशीदा मसला मौजूद था। इबादत मौजूद थी, मगर आजिज़ी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रही थी। इताअत बाकी थी, मगर खुद पसंदी खामोशी से बढ़ रही थी। वक्त के साथ इब्लीस सिर्फ इबादत करने वाला ना रहा, बल्कि सिखाने वाला बन गया। रिवायात में आता है कि बाज़ फरिश्तों ने उससे इबादत के आदाब सीखे, उसके इल्म की तारीफ की जाती और उसकी दानिश का एहतराम किया जाता था। और ऐन उसी मकाम पर एक निहायत खतरनाक मगर बारीक हद पार हो गई। अंदर ही अंदर इब्लीस ने सोचना शुरू किया, मैं आम नहीं हूं, मेरा मकाम मुख्तलिफ है, मैं इसका हकदार हूं। अभी कोई खुली बगावत ना थी, ना कोई जाहिरी इनकार, मगर दिल का रुख बदल चुका था। इबादत आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के लिए ना रही, बल्कि अपनी जात के लिए होने लगी। और यह ऐसा फसाद था जो बाहर से नजर नहीं आता था। अल्लाह ताला की हिकमत से यह खराबी फौरन जाहिर ना की गई, क्योंकि इब्लीस के अंदर छुपी हकीकत एक अजीम आजमाइश के जरिए जाहिर होनी थी। एक ऐसी आजमाइश जो या तो 20,000 साल की इबादत को मानी दे देती या एक लम्हे में उसे बेवकत बना देती। फरिश्तों के दरमियान अपने मकाम की वजह से इब्लीस ने खुद को खास समझना शुरू कर दिया।
मगर जहां फरिश्ते बगैर सवाल के इताअत करते थे, वहां इब्लीस इताअत के साथ मुकाबला भी करने लगा। और यही एक निहायत अहम फर्क था। मुकाबला वो पहली चाबी था जिसने शैतान के दरवाजे को खोला। उस वक्त तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे, सजदे का हुक्म भी नहीं आया था, मगर इब्लीस का जहन पहले ही तैयार हो चुका था। बरतरी का ख्याल उसके अंदर खामोशी से बढ़ रहा था। आग से पैदा होने की जो शिद्दत थी, वो उसे अंदर ही अंदर शक्ल दे रही थी। वो मिट्टी की हकीकत को ना जानता था, और अगर जानता भी तो उसे हकीर समझता था। इब्लीस ने खुद को सिर्फ एक इबादत गुजार बंदा नहीं, बल्कि एक ऐसी हस्ती समझना शुरू कर दिया जो बुलंद मकाम की हकदार है। यही वो मकाम है जहां बंदगी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब बंदा अपने हुकूक जताने लगे तो वो बंदा नहीं रहता। और अल्लाह ताला ने एक नई तख्लीक का इरादा फरमाया ताकि इस बातनी हकीकत को जाहिर करे। ये तख्लीक सिर्फ एक नई मखलूक न थी, बल्कि इब्लीस के बातिन का आईना थी। क्योंकि आदम सिर्फ एक इंसान न थे, बल्कि एक मेयार थे जो इब्लीस के दिल में छुपे तकब्बुर को जाहिर करने वाले थे। अभी कुछ हुआ भी ना था, मगर इब्लीस के अंदर बेचैनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ये नई मखलूक जिसे अल्लाह पैदा करने वाला था, तवज्जो का मरकज बदल देगी। मरकज अब वो खुद न रहेगा। आजमाइश का आगाज यही था। 20,000 साल की इबादत एक सवाल पर परखी जाने वाली थी। क्या तू अल्लाह के हुक्म की वजह से इताअत करता है, या इसलिए कि खुद को बरतर समझता है? इब्लीस का जवाब अभी जबान पर ना आया था, मगर उसका दिल फैसला कर चुका था, और बहुत जल्द जमीन की खामोशी टूटने वाली थी। एक पैकर शक्ल इख्तियार करेगा, और इब्लीस के अंदर छुपी बीमारी सबके सामने जाहिर हो जाएगी। एक दिन फरिश्ते जमा हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें एक खबर दी, ऐसी खबर जिस पर वो हैरान रह गए। मैं जमीन में एक खलीफा पैदा करने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, क्या तू फिर ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी, जैसा कि जिन्नात ने पहले किया, जबकि हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं? यह कोई एतराज न था, बल्कि सिर्फ एक सवाल था। फरिश्ते जानना चाहते थे, जिन्नात के बाद एक और मखलूक क्यों? अल्लाह ताला का जवाब मुख्तसर मगर गहरा था, इन्नी आलमु मा ला तालमून। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जमीन के हर हिस्से से मिट्टी ली जाए। सुर्ख मिट्टी, काली मिट्टी, सफेद मिट्टी, पीली मिट्टी, हर रंग और हर कैफियत की मिट्टी को जमा किया गया, और अल्लाह ताला ने उससे एक पैकर बनाया, इंसान। मगर वो बेजान था, सिर्फ एक जिस्म, एक जगह खड़ा, बेजान और इंतजार में। 40 दिन तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो बेहरकत पैकर वहीं मौजूद रहा। फरिश्तों ने उसे देखा, मगर उसके करीब न गए। तजस्सुस था, मगर अदब भी था। और इब्लीस ने भी उसे देखा, और उसी लम्हे उसके अंदर मौजूद तकब्बुर का जहर और ज्यादा तेजी से फैलने लगा। इब्लीस उस पैकर के करीब आया, उसके गिर्द घूमा, कभी उसके मुंह के रास्ते अंदर झांका, कभी नाक के रास्ते बाहर आया, कभी कान के जरिए दाखिल हुआ और आंखों से बाहर देखा, मगर सब कुछ खाली था, सिर्फ मिट्टी, सिर्फ खाक। इब्लीस ने आहिस्ता आवाज में तकरीबन सरगोशी करते हुए कहा, तू कुछ भी नहीं, तू सिर्फ मिट्टी है, और मैं आग से हूं। मैंने फरिश्तों को सिखाया, मैं 7 आसमानों तक पहुंचा, मैं जन्नत में दाखिल हुआ, मैं जमीन का हाकिम हूं। फिर उसने मजीद कहा, अगर मैं तुझ पर मुसल्लत हो जाऊं तो तू मुझसे बच नहीं सकेगा। रातें गुजरती रहीं। इब्लीस हर रात आता, हर रात आदम के गिर्द घूमता, हर रात उसे नीचा दिखाता और हर रात धमकियां देता। हजरत आदम उस वक्त तक इब्लीस की नजर में एक दुश्मन बन चुके थे, हालांकि उनमें अभी जिंदगी फूंकी नहीं गई थी। ना वो बोलते थे, ना हरकत करते थे, मगर इब्लीस के अंदर एक तूफान उठ चुका था, क्योंकि पहली बार उसके सामने एक ऐसी तख्लीक आ रही थी जिसमें वो मरकज नहीं था। इस इंतजार के दौरान इब्लीस का जहन मुसलसल काम करता रहा। वो मुकारना करता, वो आग के बारे में सोचता, वो मिट्टी के बारे में सोचता,
वो समझता कि आग ऊपर उठती है और मिट्टी नीचे रहती है, आग तेज है और मिट्टी भारी। और यही मुकारना आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ ख्याल ना रहा बल्कि एक अकीदा बनने लगा। सजदे का हुक्म अभी नहीं आया था, मगर इब्लीस अपना फैसला पहले ही सुनना चुका था। जूं जूं हजरत आदम का इंतजार बढ़ता गया, इब्लीस की बेचैनी भी बढ़ती गई, क्योंकि ये खामोशी उसे मजीद सोचने पर मजबूर करती, और जितना वो सोचता उसका तकब्बुर उतना ही गहरा होता जाता। हालांकि फरिश्ते ऐसे नहीं थे। फरिश्तों ने इंतजार किया, उन्होंने सवाल नहीं किया, ना ही मुकारना किया, मगर इब्लीस ने खुद अपने लिए मैयार बनाना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि रूह फूंके जाने से पहले का यह मरहला इंतहाई नाजुक था, क्योंकि इब्लीस के अंदर बगावत पुख्ता हो चुकी थी। अगरचे वो अभी जाहिर ना हुई थी, मगर अब वापसी का कोई रास्ता बाकी ना रहा था। एक दिन वो इलाही वक्त आ पहुंचा। अल्लाह ताला ने रूह फूंकी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए, उनकी आंखें खुली, हयात का आगाज हुआ, और आसमानों में गूंजने वाला हुक्म अब मजीद मुअख्खर न रहा। मगर इब्लीस के लिए यह लम्हा सजदे का नहीं था, बल्कि इन्फिसाल का आखिरी लम्हा था, क्योंकि जो तहकीर बेजान जिस्म के वक्त शुरू हुई थी, वो अब जिंदगी मिलने पर खुली बगावत में बदलने वाली थी। और बहुत जल्द एक ही हुक्म के साथ हजारों साल की इबादत एक जुमले में मिटने वाली थी। जब रूह फूंकी गई तो हजरत आदम सिर्फ एक पैकर न रहे, वो जिंदा हो गए। उन्हें इल्म दिया गया, उन्हें अस्मा सिखाए गए। फिर इलाही हुक्म आया, और ये हुक्म किसी मखलूक की ताजीम के लिए नहीं, बल्कि बंदगी की हद मुकर्रर करने के लिए था। आदम को सजदा करो। फिरिश्तों ने कोई हिचकिचाहट न की, न सवाल किया, न मुकारना किया। जैसे ही हुक्म सुना, वो सजदे में गिर गए। फिरिश्तों के लिए मेयार वाज़ेह था, अगर हुक्म है तो इताअत है। मगर उनमें एक गैर मौजूद था, इब्लीस। वो खड़ा रहा। ये कोई इस्तरारी लम्हा ना था, ना कोई उलझन। ये वो लम्हा था जब बरसों का छुपा हुआ तकब्बुर बाहर आ गया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से सवाल फरमाया। ये सवाल मालूमात के लिए नहीं था, बल्कि हकीकत को जाहिर करने के लिए था। तुझे किस चीज ने रोका जब मैंने तुझे सजदे का हुक्म दिया? इब्लीस ने जवाब दिया, और ये जवाब तारीख में गोया पहली फलसफा था। उसने वही के मुकाबले में अपनी अक्ल को मेयार बनाने की कोशिश की, और पहली बार यूं कहा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से बनाया। इन अल्फाज के साथ मेयार बदल गया। अब अल्लाह का हुक्म फैसला कुन ना रहा, बल्कि इब्लीस का मुकारना मेयार बन गया। आग और मिट्टी का यह तकाबुल सिर्फ माद्दी ना था, बल्कि मैं बेहतर हूं के नजरिए का ज़हूर था। इब्लीस ने सिर्फ सजदा से इनकार नहीं किया, बल्कि बंदगी ही से इनकार कर दिया, और उसकी कीमत बहुत भारी थी। तो यहां से निकल जा, तू रद्द कर दिया गया, और तुझ पर मेरी लानत है। इब्लीस अब फिरिश्तों में शामिल ना रहा। मगर यहां कहानी खत्म ना हुई, क्योंकि उसने हलाकत नहीं मांगी, उसने मोहलत मांगी। मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। ये दरखास्त कबूल हुई, क्योंकि आजमाइश सिर्फ इब्लीस की नहीं थी, बल्कि इंसानियत की भी थी। और इब्लीस ने वाज़ेह तौर पर अपना इरादा बयान किया, फिर मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। मैं उनके सामने से, उनके पीछे से, उनके दाएं से और उनके बाएं से आऊंगा, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। ये अल्फाज सिर्फ धमकी ना थे, बल्कि एक मंसूबा थे। इब्लीस ये कह रहा था कि वो इंसान को बराह रास्त नहीं घेरेगा, बल्कि पहलुओं से हमला करेगा। ना खुली बगावत के साथ, बल्कि खामोश गुमराही के साथ। ना सिर्फ गुनाह के जरिए, बल्कि उज्र के जरिए। ना वाज़े हराम के साथ, बल्कि जवाज के पर्दे में। और पहले वार की जगह भी वाज़े थी, जन्नत। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे। सिर्फ एक मना था, और वो भी वाज़े तौर पर बयान किया गया था। मगर इब्लीस ने बराह रास्त हराम की तरफ नहीं बुलाया। हमेशा की तरह उसने हकीकत को मोड़ दिया। रिवायात के मुताबिक इब्लीस जन्नत में सांप के जरिए दाखिल हुआ, खुले दुश्मन के तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त की शक्ल में, एक खैरखा मुशीर की तरह। और उसने कसम उठाई,
मैं तुम दोनों का सच्चा खैर खा हूं। जब उसने उस दरख्त का जिक्र किया जिससे रोका गया था, तो उसने उसे खतरा नहीं बल्कि एक मौका बनाकर पेश किया। तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा ना रह सको। ये बात हकीकत के खिलाफ थी, मगर दिल को भा गई, क्योंकि इब्लीस इंसान की कमजोरी जानता था, हमेशा रहने की ख्वाहिश और बरतर होने की तमन्ना। और फिर हजरत आदम और हव्वा ने उस दरख्त से खा लिया। उस लम्हे सिर्फ एक हुक्म की नाफरमानी ना हुई, बल्कि हिस्स और शऊर बदल गया। उर्यानियत का एहसास पैदा हुआ, हया का शऊर जागा और अपने आप को छुपाने की जरूरत महसूस हुई। क्योंकि गुनाह पहले इंसान के अंदर को बेनकाब करता है, फिर बाहर को। जन्नत अब वो जन्नत ना रही। पहला जाल बीत चुका था, पहला गिरना वाक़ई हो चुका था। मगर ये लम्हा जिसे इब्लीस ने कामयाबी समझा, दरअसल एक बड़े इम्तिहान की इब्तिदा थी, क्योंकि इंसान तौबा कर सकता था और इब्लीस नहीं। सजदे से इनकार के साथ जो जुदाई शुरू हुई थी, वो जन्नत के पहले फितने से मजीद गहरी हो गई, और उस लम्हे से जमीन के मंजर पर एक तवील, तारीक और सब्र आजमा जंग शुरू हो गई। इब्लीस के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए गए और वो इलाही रहमत से निकाल दिया गया। मगर ये सबसे बड़ी सजा ना थी। असल अजाब वो पछतावा था जो उसके अंदर जल रहा था, एक ऐसी आग जो कभी ठंडी ना हुई, क्योंकि इब्लीस जानता था उसकी गलती जहालत से नहीं थी। हुक्म वाज़े था, हकीकत वाज़े थी। ये जो कुछ नाकाम हुआ वो उसकी अकल नहीं थी, बल्कि उसका तकब्बुर था। वक्त गुजरता रहा, जमीन पर नस्लें बदलती रहीं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम आते रहे, लोगों को डराते और हक की तरफ बुलाते रहे। जब इंसान तौबा करता तो उसे माफ कर दिया जाता। मगर इब्लीस जब भी तौबा के दरवाजे के करीब आया, उसने हमेशा गलत रास्ता इख्तियार किया। उसका पछतावा नाफरमानी पर नहीं था, बल्कि उस मकाम पर था जो उससे छिन गया था। रिवायात के मुताबिक एक दिन इब्लीस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, छुपकर, न खुली दुश्मनी के साथ, न धमकियों के साथ, बल्कि सवाल लेकर, हिचकिचाहट के साथ। उसने कहा, क्या ये सच है कि अल्लाह आपसे कलाम करता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बुला झिझक जवाब दिया, जी हां। इब्लीस ने कहा, तू अपने रब से कहिए कि उसकी एक मखलूक चाहती है कि उसकी तौबा कबूल हो जाए। उसने अपना नाम जाहिर न किया, मगर उसकी नीयत वाज़ेह थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वही का इंतजार किया, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया, ए मूसा, उससे कहो मैं तुम्हारी खातिर उसकी दरखास्त कबूल करता हूं, मगर वो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाए और वहां सजदा करे। ये पेशकश रहमत का दरवाज़ा थी, मगर साथ ही एक आखिरी आजमाइश भी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम इब्लीस तक पहुंचाया, तो उसके अंदर पुरानी बीमारी फौरन फिर उभर आई। उसका चेहरा सियाह पड़ गया, गुस्सा बढ़ गया, और उसने कहा, मैंने आदम को उस वक्त सजदा नहीं किया जब वो जिंदा था, तो अब जब वो मर्दा है तो मैं उसे सजदा करूं? ये जुमला जाहिर कर गया कि उसका पछतावा हकीकी नहीं था, क्योंकि हकीकी तौबा में शर्तें नहीं होती, न तकब्बुर होता है। मगर इब्लीस अब भी खुद को दुरुस्त समझ रहा था। रिवायात के मुताबिक इस इनकार के बाद उसका अजाब मजीद सख्त कर दिया गया। उससे पूछा गया, तो अल्लाह के अजाब को कैसा पाता है? उसने मुख्तसर और सख्त जवाब दिया, तसव्वुर से भी ज्यादा सख्त। फिर एक और मौका दिया गया, आदम जन्नत में जिंदा हैं, जाओ उनके पास, सजदा करो, माफी मांगो और बख्शे जाओ। मगर इब्लीस ने फिर इनकार कर दिया। ये हठ धर्मी उसके अजाब को और बढ़ा गई। रिवायात के मुताबिक उसका अजाब दीगर जहन्नमियों के मुकाबले में 70,000 गुना ज्यादा कर दिया गया। हर 1,00,000 साल के बाद उसे अजाब से निकाला जाता, हजरत आदम के सामने लाया जाता और सजदे का हुक्म दिया जाता। मगर हर बार वही तकब्बुर, वही इनकार, वही सुकूत। इब्लीस के लिए अब कोई वापसी ना रही। वक्त गुजरता गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, और इसी मकाम पर कहानी मजीद खौफनाक हो गई।
روایات کے مطابق حضرت موس کے بعد ابلیس ان کی قبر کی تلاش میں نکل پڑا، کیونکہ حضرت موس وہ نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا، اور ہمیشہ کی طرح ابلیس اسی پرانی غلطی میں دوبارہ مبتلا ہوا۔ اس نے قدسیت کو غلط جگہ تلاش کیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر چھپائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام لوگوں سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ قبریں خود بھی ابلیس کے فتنوں کے اہم راستوں میں سے ہیں، اور یہ ان خفیہ طریقوں میں سے ایک ہے جن کے ذریعے وہ لوگوں کو سجدے اور توحید سے دور کرتا ہے۔ ابلیس یہ بات جانتا تھا، اسی لیے وہ تلاش میں تھا۔ وہ اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا مگر نہ پا سکا۔ اور یہاں ایک بہت دردناک حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب تک ابلیس توحید کو قبول نہ کرے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اس کا مسئلہ گناہ نہیں تھا، اس کا مسئلہ تکبر تھا۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو کہتا ہے میں غلط تھا، مگر ابلیس ہمیشہ کہتا رہا میں بہتر ہوں، اور یہی جملہ اس کے لیے ہمیشہ کا قفل بن گیا۔ شیطان کے پاس ندامت تھی مگر استسلام نہ تھا، آنسو تھے مگر سجدہ نہ تھا، اقرار تھا مگر اطاعت نہ تھی، اسی لیے وہ معاف نہ کیا گیا۔ یہ حصہ ہمیں ایک بات سکھاتا ہے، اللہ کی مغفرت بے حد ہے، مگر تکبر سے ڈھکا ہوا دل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ سجدہ صرف جسم کا زمین پر جھکنا نہیں بلکہ انا کا زمین پر رکھ دینا ہے۔ جب وقت آخر قریب آیا اور بھاگنے کی کوئی جگہ باقی نہ رہی تو پہلی بار ابلیس نے خود کو واقعی محصور پایا۔ صدیوں تک اس نے انسانوں کو بہکایا، کہا بعد میں توبہ کر لینا، کہا ابھی وقت ہے، کہا موت دور ہے، مگر اب وہی الفاظ اس کے گرد دیوار بن چکے تھے، کیونکہ اس بار وہ انسان کے سامنے نہیں تھا، وہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے تھا۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ شیطان کی روح قبض کرے، اور موت صرف انجام نہیں تھی بلکہ حساب کا دروازہ تھی، اور یہی وہ چیز تھی جس سے ابلیس سب سے زیادہ ڈرتا تھا۔ اسی لیے اس نے آخری بار اپنی تمام چالیں، فریب اور طاقت استعمال کی تاکہ اس گرفت سے بچ نکلے۔ یہ کوئی عام تعاقب نہ تھا، نہ کسی مخلوق اور موت کے درمیان دوڑ، بلکہ یہ ایک ایسا منظر تھا جسے آسمان اور زمین دیکھ رہے تھے اور جو کائنات میں گونج رہا تھا۔ اسرائیل کا تعاقب شروع ہوا اور شیطان زمین پر اس رفتار سے بھاگا جس تک ہوا بھی نہ پہنچ سکتی تھی، مگر اسرائیل ہر قدم کے ساتھ اس کے پیچھے تھا، کبھی راستہ نہیں کھوتا تھا۔ ابلیس زمین کے ہر کونے میں چھپنے لگا، پہاڑوں کی ڈھلوانوں میں جہاں انسان کا قدم نہ پڑا ہو، گھنے جنگلوں میں، ویران صحراؤں میں، مگر اسرائیل کی نظر ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی اور ہر لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ جب شیطان کو یقین ہو گیا کہ زمین پر اب کوئی جائے پناہ باقی نہیں تو اس نے زمین کی گہرائیوں میں چھپنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مٹی کی تہوں میں، اندھیری اور ٹھنڈی جگہوں میں چھپنے لگا، مگر زمین کی تاریکی بھی اسے اسرائیل کی نظر سے نہ بچا سکی، اور جب وہ زیر زمین راستوں میں فرار تلاش کر رہا تھا، اسرائیل ہر قدم کے ساتھ اس کے پیچھے تھا۔ زمین بھی اسے بچا نہ سکی، کیونکہ وہ کبھی مٹی سے محبت کرتا ہی نہیں تھا، آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اور اب اسرائیل بھی اس کے پیچھے تھا۔ مایوسی میں شیطان دوبارہ زیر زمین سے باہر آیا اور آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ وہ بادلوں کے درمیان پناہ ڈھونڈنے لگا، مگر آسمان کی تاریک گہرائیوں میں بھی اسے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کی موجودگی محسوس ہوتی رہی۔ جہاں بھی وہ چھپنے کی کوشش کرتا، اسرائیل اس کے پیچھے ہی ہوتا۔ یہ خوفناک اور سانس روک دینے والا تعاقب آسمان میں مزید شدت اختیار کر گیا، اور ابلیس کا خوف بڑھتا ہی چلا گیا۔ جب اسے کوئی جائے پناہ نہ ملی تو وہ گھبرا کر دوبارہ زمین کی طرف لوٹ آیا۔ اب اسے خود بھی علم نہ رہا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ خوف اور دہشت کے عالم میں وہ ہر رکاوٹ کو عبور کرتا ہوا کسی نامعلوم سمت میں بھاگنے لگا، اور پھر جب وہ مکمل طور پر مایوس ہونے لگا تو اس کے ذہن میں ایک آخری تدبیر آئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سمندروں کی طرف فرار اختیار کرے گا اور وہاں چھپ جائے گا۔ اسرائیل نے ہر جگہ تلاش کیا، مگر اس بار وہ اسے نہ پا سکا، تو وہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کیا، اے میرے رب، میں اسے نہیں پا رہا، آپ کا کیا حکم ہے؟
अल्लाह ताला ने फरमाया, जहन्नम की तरफ जाओ, उसके निगरान मालिक के पास जाओ और जहन्नम के 70,000 कुत्ते लेकर आओ, उनके जरिए इब्लीस को तलाश करो। चुनांचे इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जहन्नम के 70,000 कुत्ते लिए और उन्हें शैतान के पीछे लगा दिया। ये वो मखलूक थी जो आग से पैदा की गई थी, जिनकी आंखों में जहन्नम के शोले जल रहे थे और जिनके दांतों में मौत की सर्दी थी। वो जहन्नम की सबसे बेरहम और खूनखार मखलूक थी, जिनके जरिए तलाश मजीद तेज हो गई। मगर जब ये 70,000 कुत्ते भी इब्लीस को ना पा सके तो इज़राइल दोबारा रब्बुल आलमीन की तरफ लौटा। हुक्म पर मजीद 70,000 कुत्ते जहन्नम से लाए गए और तलाश जारी रही, मगर फिर भी वो ना मिल सका। आखिरकार एक और मर्तबा वो अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुआ और आखिरी हुक्म पर मजीद 70,000 कुत्ते लिए गए और ताक़ुब जारी रहा। जब शैतान ने अपने पीछे कुत्तों की गरज और इज़राइल की सर्द मौजूदगी महसूस की तो वो बगैर जाने के कहाँ जा रहा है मुसलसल भागता रहा और अचानक एक सुनसान और वीरान जगह पर आकर रुक गया। वो जगह आम सी जमीन लग रही थी और वो थकन से चोर होकर जमीन पर गिर गया। सोचा कि अब भागने का कोई फायदा नहीं, मगर हकीकत ये थी कि उसका वहां पहुंचना कोई इत्तफाक ना था। उस वीरान और खामोश जमीन के नीचे एक अजीम मगर पोशीदा हकीकत छुपी हुई थी, एक ऐसा राज जिससे इब्लीस बेखबर था। अंधेरे और सुकूत में वो भागने की सोच रहा था, मगर उसे अंदाजा भी ना था कि वो किस मुक़द्दस मकाम के ऊपर मौजूद है। आसमान और ज़मीन इस मंजर को खामोशी से देख रहे थे और इज़राइल अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। इब्लीस जान चुका था कि अब ना कोई ताकत बाकी है, ना कोई रास्ता। वो ज़मीन पर गिर चुका था और अब भागने की सक्कत भी ख़त्म हो चुकी थी। मलकुल मौत उसके करीब आया और कहा, ऐ मलऊन, जब अल्लाह ने तुझे सजदा का हुक्म दिया था तो तूने इनकार किया, तो क्या अब तू आदम के सामने झुक रहा है? इब्लीस लरसते हुए बोला, नहीं, मैंने आदम को सजदा नहीं किया। मैं कब और कहां उसके सामने झुका हूं? इसी लम्हे हकीकत वाज़े हुई। वो जगह जहां वो गिरा हुआ था वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के ऐन ऊपर थी, मगर उसे उसका इल्म ना था। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इज़राइल ने उसकी रूह कब्ज कर ली और उसका आखिरी सांस एक ऐसी खौफनाक चीख की सूरत में निकला जो कायनात ने कभी ना सुनी थी। वो चीख आसमान और ज़मीन को लर्जा गई और अगर उस वक्त इंसान मौजूद होते तो उसकी दहशत से फना हो जाते। और यही वो मंजर है जिसकी तरफ कुरान इशारा करता है। कुरान पाक की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। यानी जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया, तकब्बर किया और काफिरों में शामिल हो गया। कुरान पाक की सूरह सी की आयत नंबर 82 और 83 में अल्लाह ताला फरमाता है, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन। यानी इब्लीस ने कहा, तेरी इज्जत की कसम, मैं उन सब को ज़रूर गुमराह करूंगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। और कुरान पाक की सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाता है, वक़ाल अश-शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्र इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़ व वादतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम। यानी जब फैसला हो जाएगा तो शैतान कहेगा, बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने तुमसे वादा किया था, मगर मैंने तुम्हें धोखा दिया। मेरा तुम पर कोई जोर न था सिवाय उसके कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी बात मान ली। लिहाजा मुझे मलामत न करो बल्कि अपने आप को मलामत करो। न मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और न तुम मेरी। मैं पहले ही इस बात का इनकार कर चुका था कि तुम मुझे अल्लाह का शरीक बनाओ। यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। ये वो आखिरी ऐलान था जो इब्लीस की जबान से निकलेगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को उस लम्हे का गवाह बनाया गया। ये इंतकाम नहीं था बल्कि एक इबरत थी, ताकि इंसानियत को ये हकीकत दिखा दी जाए कि जो तकब्बुर को थामे रखता है वो गिर जाता है और जो सजदे से भागता है
वो आखिरकार हार जाता है। इब्लीस ने अपनी पूरी जिंदगी आदम की दुश्मनी में गुजार दी, मगर उसने अपना आखिरी सांस भी आदम की कब्र के पास लिया। गोया जिस सजदे से वो भागा था, वही सजदा आखिरकार उस तक पहुंच गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि शैतान चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो मौत के सामने बेबस है, और इलाही अदल बाज औकात अपनी सबसे सख्त बात खामोशी से कह देता है। और अब शैतान का निज़ाम उस दुनिया में जब से इब्लीस लानती करार पाया, उसका एक ही मकसद है, इंसानों को गुमराह करना। मगर कैसे? वो फरिश्तों की तरह ताकतवर नहीं, वो जबरदस्ती किसी को जहन्नम में नहीं घसीट सकता। तो फिर वो कैसे काम करता है? वैसा यही उसका सबसे बड़ा हथियार है, वो छुपी हुई सरगोशी, वो अंदर की आवाज, ये कर लो, आजमा लो, क्या फर्क पड़ता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के अंदर ऐसे गर्दिश करता है जैसे खून रगों में गर्दिश करता है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। यानी वो तुमसे दूर नहीं, वो तुम्हारे साथ है, हर वक्त, हर जगह, हर लम्हा। एक जिंदगी बिस्मिल्लाह के साथ और एक जिंदगी बिस्मिल्लाह के बगैर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब इंसान अपने घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम लेता है, तो शैतान अपने साथियों से कहता है, यहां ना तुम्हारे लिए रहने की जगह है और न खाने का इंतजाम। सही मुस्लिम, हदीस के मफहूम के साथ। और यही वो नुक्ता है जहां शैतान का निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि जहां अल्लाह का जिक्र होता है, वहां उसकी सरगोशी खत्म हो जाती है। अगर इंसान अल्लाह को याद किए बगैर घर में दाखिल हो, तो शैतान कहता है, तुमने रहने की जगह पा ली है। और अगर खाते वक्त अल्लाह का नाम ना ले, तो वो कहता है, तुमने रहने की जगह भी पा ली और खाना भी। बिस्मिल्लाह एक ढाल की तरह है, जब ये ढाल कायम हो जाए तो इब्लीस अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और इसी सिलसिले में एक रिवायत के मुताबिक इब्लीस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, क्या आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ। इब्लीस ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा वो झूठा पसंद है, क्योंकि झूठ बोलने वाला मेरा दोस्त है। सबसे पहला झूठ मैंने बोला, और आदम और हव्वा को जो वसवसा दिया वो भी झूठी था। फिर उसने कहा, और क्या तुम जानते हो मुझे किससे सबसे ज्यादा नफरत है? मुझे उस नौजवान से नफरत है जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जिंदगी लगा दे, क्योंकि वो मुझसे दूर हो जाता है। यानी शैतान के नज़दीक सबसे खतरनाक वो नौजवान है जो अपनी जवानी, ताकत और तवानाई अल्लाह के लिए वक्फ कर दे, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब इंसान सबसे ज्यादा मजबूत होता है और इब्लीस इसी कुव्वत से खौफजदा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और किससे नफरत है? इब्लीस ने कहा, मुझे उस गरीब से नफरत है जो सब्र करता है और अपनी ज़रूरतें लोगों के सामने नहीं रखता, क्योंकि वो अल्लाह पर भरोसा करता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और किससे? इब्लीस ने कहा, मुझे उस मालदार से नफरत है जो शुक्रगुजार हो, क्योंकि माल के साथ शुक्र करना बहुत मुश्किल है, और जो ये कर ले उस पर इब्लीस का जोर नहीं चलता। वो मकामात जहां शैतान को पसंदीदगी हासिल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक बाजार वो जगह है जहां शैतान को ज्यादा मौका मिलता है, क्योंकि वहां झूठ, धोखा, सूद और फरेब आम होते हैं। इसी तरह गुनाह और बेहयाई के मकामात भी उसके लिए आसान रास्ता बन जाते हैं। मगर दूसरी तरफ वो जगहें जहां शैतान सबसे ज्यादा कमजोर होता है, वो है मसाजिद, कुरान की तिलावत के घर, जिक्र की महफिलें और दुआ के लम्हात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग किसी घर में अल्लाह का जिक्र करते हैं तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन पर छा जाती है, सुकून नाजिल होता है और अल्लाह ताला उनका जिक्र अपने मुकर्रब फरिश्तों में फरमाता है। ऐसे घरों से शैतान भाग जाता है। कुरान में शैतान की हकीकत यूं बयान की गई है, वो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है, चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। शैतान आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होता है। पहले एक छोटा सा शक डालता है, ये गुनाह क्यों है,
یہ عمل دراصل آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ پہلے خیال آتا ہے یہ تو معمولی بات ہے، اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا۔ پھر وہی خیال مضبوط کیا جاتا ہے، پھر ذہن سوال اٹھاتا ہے دنیا میں برائی تو موجود ہے، اگر اللہ ہے تو اسے روک کیوں نہیں رہا؟ اور پھر اگلا قدم آتا ہے شاید دین انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ یہ پورا سلسلہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، قدم بقدم، اور اکثر انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی طاقت ہے، ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر گرہیں لگا دیتا ہے اور اسے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ گرہیں کھل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمات ہیں جو دل کی بند گرہیں کھول دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان نماز کے دوران کیا کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہوا خارج کرتا ہوا دور چلا جاتا ہے۔ جب آذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو وہ دوبارہ بھاگتا ہے، اور جب نماز شروع ہوتی ہے تو واپس آ کر انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ یاد کر لو، وہ یاد کر لو، یہاں تک کہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ نماز میں خیالات بھٹک گئے ہوں؟ آج کیا پکانا ہے؟ وہ کام مکمل ہوا یا نہیں؟ کل کیا کرنا ہے؟ یہ سب وسوسے اسی طرف سے آتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا۔ یہ جملہ شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ رات کو وضو کے ساتھ سونا بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، شیطان صبح تک اس کے قریب نہیں آتا، اور آیت الکرسی کی تلاوت بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ وہ بار بار سوال کرتا رہا، اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ جب انسان غصے میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اور وضو کر لے۔ ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، خاموش رہے اور اپنے آپ کو روک لے، کیونکہ ابلیس کو سب سے زیادہ فائدہ غصے والے انسان سے ہوتا ہے۔ طلاقیں، جھگڑے، قتل اور بڑے بڑے فساد اکثر غصے ہی سے شروع ہوتے ہیں۔ اور جب وسوسے اور ایمان کے بارے میں بھاری خیالات آئیں، ایسے خیالات جو دل کو ہلا دیں، مثلاً کیا اللہ واقعی موجود ہے، یا کیا انبیاء واقعی سچے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم انہیں زبان پر لانے سے جل کر راکھ ہو جانے کا تصور کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، جس نے شیطان کے مکر کو صرف وسوسہ تک محدود کر دیا ہے۔ صحیح مسلم مفہوم کے ساتھ، یعنی یہ وسوسے ایمان کی علامت ہیں، کیونکہ شیطان انہی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جن کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے۔ جنہوں نے پہلے ہی انکار کر دیا ہو، انہیں وسوسے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لہٰذا علاج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، اور اس خیال کو روک دو، آگے نہ بڑھاؤ۔ یہی شیطان کا طریقہ ہے، آہستہ، خاموش اور مسلسل۔ وہ ایک دم گمراہ نہیں کرتا، بلکہ قدم بقدم لے جاتا ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں حفاظت کے طریقے بھی ہیں، کیونکہ ابلیس کی طاقت محدود ہے۔ وہ صرف اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اللہ اجازت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے خود اعتراف کیا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے
रोज़ा रखता है और सदका देता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से वो जलता है वो अल्लाह का जिक्र है। जिक्र ही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और आयतुल कुर्सी ये एक मजबूत तरीन ढाल है। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया कि रात के वक्त कोई शख्स आकर उनका सदका चुरा लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो वो कौन है? इस वाक़े में बाद में तालीम दी गई कि हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ो और शैतान से बचो। सहाबी ने अर्ज़ किया, मैं कोशिश करूंगा। इस रात सहाबी ने इंतज़ार किया और उस शख्स को पकड़ लिया। वो शख्स गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे छोड़ दो, मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं। सहाबी के दिल में रहम आया और उसने उसे छोड़ दिया। सुबह जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, सारा वाकया बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो दोबारा आएगा। दूसरी रात भी यही हुआ। वही शख्स आया, पकड़ा गया, फिर रोने लगा और फिर छोड़ दिया गया। तीसरी रात सहाबी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, इस बार मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। वो शख्स बोला, रुक जाओ, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें एक बहुत कीमती बात सिखाता हूं। सहाबी ने पूछा, क्या सिखाओगे? वो बोला, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम पर एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। सुबह जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, इसने तुमसे सच कहा, लेकिन वो झूठा है। क्या तुम जानते हो वो कौन था? वो शैतान था। जी हां, इब्लीस खुद भी आयतुल कुर्सी की ताकत को जानता है। आयतुल कुर्सी कब पढ़नी चाहिए? फजर के बाद पढ़ने वाला पूरा दिन हिफाजत में रहता है। मगरिब के बाद पढ़ने वाला पूरी रात महफूज रहता है। सोने से पहले पढ़ने वाला नींद में महफूज रहता है। घर से निकलते वक्त पढ़ने वाला बाहर हिफाजत में रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके लिए जन्नत में दाखिले से सिर्फ मौत रुकावट रह जाती है, यानी वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। बिस्मिल्लाह, हर चीज की इब्तिदा, सिर्फ एक जुमला, मगर इब्लीस के लिए ये आग की तरह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अहम काम बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए वो बेबरकत और नामुकम्मल होता है और शैतान इसी जगह दखल देता है। जब बिस्मिल्लाह छोड़ दिया जाए, घर में दाला होते वक्त, घर से निकलते वक्त, खाना शुरू करते वक्त, पानी पीते वक्त, कपड़े पहनते वक्त, वुज़ू शुरू करते वक्त, सफ़र शुरू करते वक्त, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मियाँ बीवी ताल्लुक़ कायम करें और ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, तो अगर इस ताल्लुक़ से औलाद पैदा हो तो शैतान उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सही बुखारी व सही मुस्लिम। बिस्मिल्लाह हर जगह ज़रूरी है। और आखिर में सबसे बड़ी ढाल, जिक्र। शैतान का सबसे बड़ा खौफ अल्लाह का जिक्र है। जिक्र क्या है? अल्लाह को याद करना, उसके नाम को दोहराना। जिक्र की सबसे सादा सूरतें ये हैं, सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह हर नक्स से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहे, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। जो शख्स जिक्र करता है वो शैतान से महफूज रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के दिल के साथ लगा रहता है। जब वो अल्लाह को याद करता है तो शैतान पीछे हट जाता है, और जब वो गाफिल होता है तो शैतान उसके दिल पर काबिज हो जाता है। लिहाजा दिल को खाली ना छोड़ो, हमेशा अल्लाह को याद रखो। सुबह और शाम के अज़कार। सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ा जाने वाला जिक्र
अऊदु बिकलिमातिल्लाहित्ताम्मात मिन शर्रि मा खलक, यानी मैं अल्लाह के कामिल कलिमात के जरिए उसकी पनाह मांगता हूं हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की। और ये दुआ भी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, यानी अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम के साथ ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये दुआ सुबह 3 मरतबा पढ़े उसे शाम तक कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और जो शाम को पढ़े उसे सुबह तक कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कुरान और घर की हिफाजत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। खुसूसन सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात आमन रसूल बहुत बड़ी हिफाजत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को ये आयात पढ़ ले वो उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं, यानी वो रात भर महफूज रहता है। इसी तरह सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुन नास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले ये 3 सूरतें पढ़ते, हाथों पर फूंक कर पूरे जिस्म पर फेरते थे। दुआ, सबसे मजबूत हिफाजत। ऐ मेरे रब, मैं शयातीन के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूं, और ऐ मेरे रब, मैं उनकी मौजूदगी से तेरी पनाह चाहता हूं। सूरतुल मुमिनून 97 से 98। ये दुआ सुबह शाम पढ़ो, शैतान दूर हो जाएगा। इखलास, वो मकाम जहां शैतान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अल्लाह ने इब्लीस से फरमाया कि मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई इख्तियार नहीं होगा। इखलास क्या है? हर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए करना, ना दिखावे के लिए ना लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। जहां इखलास होता है वहां शैतान दाखिल नहीं हो सकता। सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल भी एक बहुत बड़ी ताकत है। इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार मायूसी है। वो इंसान के दिल में डालता है, तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है, तुम खत्म हो चुके हो, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम जहन्नमी हो चुके हो, अब गुनाह ही करते रहो। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। सूरत-उज़-ज़ुमर 53। यानी गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत इससे भी बड़ी है, बस सच्ची तौबा शर्त है। इब्लीस इंसान को मायूसी में धकेलना चाहता है, लेकिन मोमिन का रास्ता सब्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, उसका हर हाल उसके लिए खैर है। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है, और अगर तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, और ये भी उसके लिए खैर है। सही मुस्लिम। इब्लीस ताकतवर जरूर है, लेकिन अल्लाह सबसे ज्यादा ताकतवर है। इब्लीस चालाक है, लेकिन अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। इब्लीस करीब है, लेकिन अल्लाह उससे भी ज्यादा करीब है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हमने इंसान को पैदा किया और हम उसके नफ्स के वसवसों को जानते हैं, और हम उसकी शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। सूरत कफ 16। यानी अगरचे शैतान रगों में वसवसा डालता है, मगर अल्लाह उससे भी ज्यादा करीब है। बस अल्लाह की पनाह तलब करो, जिक्र करो, दुआ करो, नमाज कायम करो, कुरान पढ़ो, बिस्मिल्लाह कहो, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो, और ये यकीन रखो अल्लाह तुम्हारे साथ है। इब्लीस का अंजाम वाज़े है, तुम्हारा अंजाम भी वाज़े हो सकता है। इंतखाब तुम्हारे हाथ में है। इंसान अल्लाह की एक बहुत खास मखलूक है। हम हैवान और फरिश्तों के दरमियान पैदा किए गए हैं। अगर हम चाहें तो फरिश्तों से भी बुलंद हो सकते हैं, और अगर शैतान के पीछे चलें तो जानवरों से भी नीचे गिर सकते हैं। इंतखाब हमारा है। कहा जाता है कि कभी फरिश्ते इंसान की हालत पर रश्क करते हैं, और कभी शैतान भी इंसान की हालत पर हैरान रह जाता है।